السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ملک زارستان پر ایک مرتبہ ایک انوکھی حکومت قائم ہوئی۔ اس ملک میں 7 بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ 7 بادشاہ ایک ایک دن کی حکومت کرتے تھے، یعنی ایک دن ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی تو دوسرے دن دوسرے بادشاہ کی، اسی طرح تیسرے دن تیسرے بادشاہ کی۔ اس طرح پہلے بادشاہ کی باری 7ویں روز آتی۔ 7 بادشاہ اصل میں آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان کے باپ نے ہی ان سب کی نیک دلی، رحم دلی اور ان کا آپس میں پیار دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ ان سب کو ہی بادشاہ بنا دیا جائے اور سب اس ملک پر ایک ایک دن کی بادشاہت کریں اور رعایا کی خدمت کریں اور ان کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ کریں۔ اور واقعی ان 7 بادشاہوں کی حکومت اپنی مثال آپ تھی۔ وہ جس نیک دلی سے حکومت کر رہے تھے اس سے ان کی رعایا بے حد خوش تھی، اور ان دنوں پورے ملک میں امن و امان اور سکون تھا۔ ان 7 بادشاہوں کے فیصلے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس روز ایک بادشاہ کوئی فیصلہ صادر کرتا تو دوسرے روز دوسرا بادشاہ اس فیصلے کو رد نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی دوسرے بادشاہ پہلے سے صادر شدہ فیصلوں پر اپنا کوئی فیصلہ ثابت کر سکتا تھا۔ ان بادشاہوں میں سے 6 بادشاہوں کے ہاں 6 بیٹے ہوئے، جبکہ 7واں بادشاہ جو سب سے چھوٹا تھا اس کے ہاں ملکہ نے ایک نہایت خوبصورت اور چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ بچوں کی ولادت سے 7 بادشاہ بے حد خوش تھے۔ اس روز پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ سب سے چھوٹا بادشاہ شاہزیب بیٹی کی ولادت سے بے حد خوش تھا، مگر اس کی ملکہ کو بیٹی کی پیدائش پر کافی رنج ہوا۔ وہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہنے لگی تھی۔ بادشاہ شاہزیب اور دوسری ملکاؤں نے کئی بار اس کی پریشانی اور اداسی کا اس سے سبب پوچھا، مگر وہ انہیں ہنس کر ٹال دیتی۔ اصل میں اس ملکہ کو اس بات کی پریشانی تھی کہ باقی 6 ملکاؤں کے ہاں ولی عہد پیدا ہوئے اور اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا۔ آئندہ جب کبھی اس ملک میں بادشاہت قائم ہوگی تو دوسری ملکاؤں کے بیٹے یقیناً وہاں کے بادشاہ بن جائیں گے، اور اس کی بیٹی بادشاہ سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائے گی۔ یہی غم اس ملکہ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ دن رات رو رو کر خدا سے دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک بیٹے سے نواز دے تاکہ دوسری ملکاؤں کے بیٹوں کے ساتھ اس کا بیٹا بھی اس ملک کے تخت و تاج کا وارث ہو سکے۔ مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 بیٹوں اور 7ویں بیٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 7 بادشاہوں کو مزید اولاد سے محروم رکھا، اور یوں اس محل میں 6 شہزادے اور 1 شہزادی نہایت ناز و نام سے پرورش پانے لگے۔ 7 دنوں کے 7 بادشاہوں کے دربار میں ایک ہی وزیر اعظم تھا جس کا نام زولاس تھا۔ وزیر اعظم زولاس ان 7 بادشاہوں کی بادشاہت سے سخت ناخوش رہتا تھا۔ اصل میں 7 بادشاہ اپنے اپنے احکامات کا بوجھ اس پر لاد دیتے تھے، جس کی وجہ سے اندر ہی اندر وزیر ان سب سے بے حد نالاں تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ کسی طرح یہ 7 بادشاہ مر جائیں اور ان سب کی جگہ وہ اکیلا ہی ملک زارستان کا بادشاہ بن جائے۔ مگر ایک بادشاہ ہوتا تو اسے مار کر اس کے تخت پر قبضہ کیا جا سکتا تھا، لیکن 7 بادشاہوں کو مارنا اور تخت پر قبضہ کرنا واقعی ایک مشکل ترین کام تھا۔ اور 6 شہزادوں کی پیدائش کا سن کر تو اسے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ سوچتا تھا کہ جس طرح 7ویں بادشاہ شاہزیب کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی، اسی طرح باقی بادشاہوں کی اولاد بھی اگر لڑکیاں ہوتی تو شاید مستقبل میں اس ملک کا بادشاہ بننے کا اسے موقع مل جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن میں دربار میں تو ہر وقت خوش رہتا اور سارے بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر گھر واپس آ کر وہ سخت غصے میں رہتا اور ہر وقت ان بادشاہوں کو برا بھلا کہتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے وزیر کو بھی ایک بیٹا دیا ہوا تھا جس کا نام اس نے شہزادوں جیسا رکھا تھا، یعنی شیر دل، اور وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ شہزادہ شیر دل ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ وزیر بعض اوقات اپنے بیٹے کو بھی دیکھ کر دل ہی دل میں کرتا رہتا کہ کاش جس ملک کا وہ بادشاہ نہیں بن سکا اس کا بیٹا ہی مستقبل میں اس ملک کا بادشاہ بن جائے۔ مگر 6 ولی عہد ہونے کی وجہ سے یہ سب کس طرح سے ممکن تھا؟ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 7 بادشاہ بوڑھے
और उनकी औलादें जवान हो गईं। वजीर का बेटा शेरदिल भी जवान होकर बेहद बहादुर, खूबसूरत और नहायत खुश इखलाक हो गया। वजीर ने इसे बादशाहों के बेटों की तरह हर तरह की दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ फ़नून जंगी से भी रोशनास कराने में कोई कमी न छोड़ी। वो अपने बाप की तरह हसदखोर और बुरी सोचों वाला नौजवान नहीं था, बल्कि बेहद ज़हीन, शरीफ और नहायत अच्छा नौजवान था। एक रोज़ एक बादशाह के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और इसने रो रो कर दुहाइयाँ देना शुरू कर दीं। उसे इस तरह बुरी तरह रोते और दुहाइयाँ देते देखकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। क्या बात है बड़ी अम्मा, सातों बादशाहों के पुरअमन और खुशहाल मुल्क में आपके साथ किसने ज्यादती और जुल्म किया है जो आप इतनी बुरी तरह से रो रही हैं? हमें बताइए, किसने आपको सताया है? उस रोज के बादशाह असफंदियार ने हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देखते हुए निहायत नरम लहजे में पूछा, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और शक्ल सूरत से वो कोई भिखारन मालूम होती थी। बादशाह सलामत, बिलाशुबा आपकी रियासत में हर तरफ अमन व अमान है, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। सातों बादशाहों के मुल्क में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी भिखारन हूँ और दूसरे मुल्क से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। मैंने काफ़ी अरसे से दरिया के किनारे अपनी झोपड़ी बना रखी है, जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बादशाह सलामत, आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रही थीं कि अचानक दरिया में से एक सब्ज रंग के सींगों वाला द्यों निकला और इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखे चिल्लाए, मगर द्यों मेरी बेटी को उठाकर दरिया में ले गया। वो मेरी इकलौती बेटी थी बादशाह सलामत, ज़ेब मेरी इकलौती बेटी है। खुदा के लिए इस द्यों से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। क्या कहा? दरिया का एक सब्ज द्यों तुम्हारी बेटी को ले गया? वजीर, ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? हमारी रियासत के दरिया में द्यों कहाँ से आ गया? और इस द्यों में इतनी जुर्रत कि वो हमारी रियासत की बूढ़ी औरत की बेटी को उठाकर ले गया। पता लगाओ वो नामुराद द्यों कौन है, कहाँ से आया है और बूढ़ी औरत की बेटी को कहाँ ले गया? बादशाह ने कड़कदार लहजे में कहा। बादशाह सलामत, मुझे इस द्यों के बारे में कोई इल्म नहीं। बहरहाल मैं अभी दरिया के किनारे जाता हूँ और उसके बारे में पता लगाता हूँ, वजीर ने मौतबाना लहजे में कहा और बादशाह से इजाज़त लेकर उसी वक़्त चंद सिपाहियों के साथ वो दरिया के किनारे पर पहुँच गया। दरिया के किनारे और दरिया में चंद गोताखोर भेजकर इसने पूरा दरिया छान मारा, मगर ना ही उसे बूढ़ी औरत की लड़की का पता चला और ना ही उसे कोई सब्ज़ द्यों मिला। तो इसने आकर अपनी नाकामी की खबर बादशाह को दी। बूढ़ी औरत रोज़ बादशाहों के पास फरियाद लेकर आती और वजीर रोज़ ही दरिया पर लड़की और द्यों की तलाश में निकल जाता, और जब नाकाम होकर वापस लौटता तो बादशाह उस पर गज़बनाक होते, उसे बुरी तरह से डांटते डपटते, और वजीर इनकी डांट सुनकर खून के घूंट भरकर रह जाता। एक रोज़ वजीर ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा, काश किसी तरह सब्ज़ द्यों मुझे मिल जाए तो मैं इसे अपने साथ मिला लूँ और उससे कहूँगा वो इन सातों बादशाहों का खात्मा कर दे और उनकी जगह मुझे रियासत का बादशाह बना दे। अगर वो आदमखोर द्यों हुआ तो मैं उसे हर रोज़ खुद इंसानों का गोश्त खिलाया और उनका खून पिलाया करूँगा। वो इस वक्त दरिया के किनारे पर खड़ा था और चंद गोताखोर लड़की और द्यों की तलाश में दरिया में उतरे हुए थे। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुल्क के सातों बादशाहों का खात्मा कर दूं और इस मुल्क का बादशाह तुम्हें बना दूं, तो क्या वाकई तुम हर रोज़ मुझे किसी नौजवान लड़की का खून पिलाया करोगे? एक तरफ से भारी और करख्त आवाज़ सुनाई दी और यह आवाज़ सुनकर वजीर ज़ुला तेज़ी से पलटा। दूसरे इला में अपने करीब एक सब्ज रंग के खौफनाक शक्ल वाले द्यों को देखकर उसका खून खुशक होकर रह गया। सब्ज द्यों बेहद लहीम व शहीम था। उसका सर गंजा था, जहाँ दो नुकीले सींग भी निकले थे और कान में बड़े बड़े बाले झूल रहे थे। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। इस द्यों ने सुर्ख रंग का एक लंगोट बांध रखा था। इस द्यों को देखकर वजीर की घिघी बंध गई और वो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से लरजने और कांपने लगा। तुम सब्ज द्यों हो? वजीर ने लरजते हुए सब्ज द्यों से पूछा। हाँ,
मैं सब्ज़ दियो हूँ, मेरा नाम शाताल दियो है, तुम इस मुल्क के वज़ीर हो ना? उस दियो ने गौर से वज़ीर की तरफ देखते हुए कहा, और वज़ीर से जब खुद बोला ना गया तो इसने बड़ी मुश्किल से अपना सर इस बात में हिला दिया। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है वज़ीर, अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम हर रोज़ मुझे खूबसूरत और नौजवान लड़की का खून पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं 7 बादशाहों को हलाक करने में तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना सकता हूँ। शाताल दियो ने वज़ीर की तरफ गौर से देखते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर वज़ीर बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी आंखों में अचानक बेपनाह चमक आ गई। क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं एक ताकतवर दियो हूँ और मेरे पास जादू की ताकतें भी हैं, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, उसने जवाब देते हुए कहा। ओह शाताल दियो, अगर तुम मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं रोज़ाना 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा। मगर तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ सिपाही आए हुए हैं, वो तुम्हारी तलाश में दरिया में उतरे हुए हैं, कहीं वो तुम्हें मेरे साथ ना देख लें। मैं बाद में यहाँ आऊँगा और तुमसे अकेले में बात करूँगा। मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की क्या ज़रूरत है? अगर कहो तो मैं इन सब की लाशें दरिया में ही बहा देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम्हारी तलाश में नाकामी ही मिलनी चाहिए, तुम इस वक्त जाओ, मैंने कहा ना कि मैं बाद में आऊँगा। वज़ीर ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तुम यहाँ आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। शाताल दियो ने कहा, और वज़ीर जुलास ने जल्दी से सर हिला दिया और उसी वक्त शाताल दियो वहाँ से गायब हो गया। उसके जाते ही वज़ीर के जिस्म में जैसे सरशारी की लहरें दौड़ती चली गईं। सब्ज़ दियो की दोस्ती पाकर उसे अपना बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदलता हुआ मालूम हो रहा था और वो ख्यालों ही ख्यालों में खुद को मुल्क ज़ारस्तान का बादशाह बनते देख रहा था। गोताखोर नाकाम होकर दरिया से बाहर आ गए और वज़ीर उन्हें लेकर वापस आ गया। बादशाह सलामत, मुझे तो ये औरत झूठी मालूम होती है। पिछले 4-5 रोज़ से मैं मुसलसल सिपाहियों को लेकर दरिया पर जा रहा हूँ, मगर अभी तक ना ही मुझे वहाँ कोई लड़की मिली और ना ही किसी देव के निशान मिले। अगर वहाँ कोई देव होता तो कम से कम हमें इसका कोई निशान तो मिलता। वज़ीर ने बादशाह सलामत के दरबार में आकर उसे शाही सलाम करते हुए नहायत अदब से कहा। उस वक़्त बूढ़ी औरत फरियादी भी वहाँ मौजूद थी। मैं झूठी नहीं बादशाह सलामत, सब्ज़ रंग के देव को मैंने अपनी आंखों से दरिया से निकलते देखा था। उसने सुर्ख रंग का लंगोट पहन रखा था, उसके सर पर सींगों और कानों में बड़े बड़े बाले थे। वो बेहद खौफनाक शक्ल वाला देव था। बादशाह सलामत, दरिया से बाहर आते ही इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था और उसे लेकर दोबारा दरिया में कूद गया। अगर ऐसी बात है तो हमें इस देव का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गोताखोर सिपाहियों ने पूरा दरिया छान मारा, मगर ना ही दरिया में किसी की लाश मिली और ना ही कोई देव। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी औरत ने खुद ही अपनी बेटी को किसी जगह छुपा दिया है और एक झूठी कहानी घड़कर यहाँ आ गई है ताकि आपसे अपनी बेटी के बदले में दौलत हासिल कर सके। वज़ीर ने मकारी से भरपूर लहजे में कहा। उस रोज़ का बादशाह शहरोज था जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। वज़ीर की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से वावेला मचाने लगी। बादशाह उसकी जानिब गौर से देख रहा था। नहीं वज़ीर, हमें इस औरत की बात झूठी मालूम नहीं होती, तुम अपनी तलाश जारी रखो, हो सकता है कभी ना कभी उसकी बेटी या सब्ज़ देव के बारे में पता मिल जाए। और बूढ़ी अम्मा इस वक्त तक के हालात वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बात दुरुस्त नहीं है, मगर इसके बावजूद जब तक असल हकीकत का पता नहीं चल जाता, आप हमारी शाही मेहमान हैं, हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। शहरोज बादशाह ने पहले वज़ीर और फिर बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा और बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जबकि वज़ीर दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस बादशाह और दूसरे 6 बादशाहों के थोड़े दिन रह गए हैं। वो शाताल देव के साथ मिलकर इन सब का खात्मा कर देगा और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मुल्क का बादशाह बनने से नहीं रोक सकती। बादशाह सलामत,
मैं दरिया पर सब्ज़ दियो और इस बूढ़ी औरत की लड़की को तलाश करते करते थक गया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आराम करने के लिए घर चला जाऊँ। आज का दरबार नायब वज़ीर संभाल लेगा। वज़ीर जुलास ने बादशाह से कहा, असल में वो जल्दी से जल्दी दोबारा दरिया पर जाना चाहता था ताकि वो शैताल देव से मिलकर जल्द से जल्द इन बादशाहों की हुकूमत का खात्मा कर सके और इनकी जगह खुद बादशाह बन जाए। इसलिए वो बादशाह से अपनी तबीयत की खराबी का बहाना कर रहा था। बादशाह ने उसकी बात मान ली और वज़ीर बादशाह को सलाम करता हुआ दरबार से निकल गया। वज़ीर जुलास के बेटे शेरदिल ने जब अपने बाप को दरबार से निकलकर घर जाने के बजाय किसी और तरफ जाते देखा तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सका। वो उस वक़्त दरबार में ही मौजूद था जब वज़ीर तबीयत की खराबी का कहकर बादशाह सलामत से घर जाने की इजाज़त मांग रहा था। फिर जब वज़ीर घर जाने के लिए निकला तो शेरदिल भी उसके पीछे हो लिया ताकि अपने बाप से कहे अगर उसकी तबीयत ज़्यादा नासाज है तो वो पहले शाही तबीब से क्यों नहीं मिल लेता। मगर दरबार से निकलकर इसने अपने बाप को किसी और तरफ जाते देखा तो वो हैरान रह गया। वज़ीर एक घोड़े पर सवार था और इसलिए निहायत तेज़ी से एक तरफ जा रहा था। उसके साथ कोई भी नहीं था। शेरदिल ने भी अपना घोड़ा लिया और अपने बाप के पीछे हो लिया और जब इसने अपने बाप को दरिया की तरफ जाते देखा तो उसकी हैरत में और ज़्यादा इजाफा हो गया और वो सोचने लगा, ये अब्बा जान दोबारा दरिया की तरफ क्या लेने जा रहा है? अभी तो ये दरिया से वापस लौटे थे। उसने हैरत से खुद कलामी करते हुए कहा। न जाने क्यों उसे अपने बाप को दरिया की तरफ जाने से शक हो गया। वो खामोशी से अपने बाप का ताक़ुब करने लगा। दरिया पर पहुंचकर वज़ीर ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही दरिया के किनारे की तरफ जाने लगा और ऊंची नीची चट्टानों की वजह से इसने अभी अपने बेटे को नहीं देखा था। शेरदिल ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और अपने बाप के पीछे चला गया। वज़ीर दरिया के करीब जाकर रुक गया। शेरदिल किसी ख्याल के तहत एक झाड़ी में आकर छुप गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा जिसकी हरकत और सकनात बेहद अजीब थीं। शैताल देव, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ, मेरे सामने जल्दी आओ। वज़ीर ने दरिया की तरफ देखते हुए 3 बार शैताल देव का नाम लेकर पुकारा और शैताल देव का नाम सुनकर शेरदिल की पेशानी पर शिकने सी फैल गईं और फिर अचानक इसने अपने बाप के पास एक इंतहाई लहीम और शहीम और ताकतवर सब्ज रंग के देव को नमूदार होते देखा। देव बेहद खौफनाक था। उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले थे। ओहो, ये तो वही सब्ज देव है जिसने गालिबन बूढ़ी औरत की बेटी को उठाया था। मगर अब्बा जान इस देव को कैसे जानते हैं? और इन्होंने जिस तरह इस देव का नाम लेकर पुकारा, इससे तो लगता है जैसे ये देव उनका ही दोस्त हो। मगर ये कैसे मुमकिन है? शेरदिल दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। तुम आ गए वज़ीर, अब तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना? बताओ क्या सोचा मेरे बारे में? उस देव ने वज़ीर से मुखातिब होकर पूछा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शैताल देव, बस तुम जल्दी से जाकर इन 7 बादशाहों की हुकूमत का खात्मा कर दो और मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो। उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर रोज़ मैं तुम्हें 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाया करूँगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने महल में रख लूँगा। वज़ीर ने देव से कहा और अपने बाप की ये बात सुनकर शेरदिल हैरान रह गया। बहुत खूब वज़ीर, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई। आज से ठीक 7वें रोज़ मैं तुम्हारे 7 बादशाहों को हलाक कर दूंगा और अपनी जादू की ताकत से तुम्हें उस मुल्क का अकेला बादशाह बना दूंगा। ये लो, ये अंगूठी रख लो, ये जादू की अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जिस चीज़ को मांगोगे वो चीज़ एक लम्हे में तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब गौर से सुनो कि इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम किसी रोज़ अपने 7 बादशाहों से बारी बारी मिलकर उनकी आंखों के सामने इस अंगूठी को कर देना। जादू की इस अंगूठी की वजह से इन बादशाहों के दिमाग उलट जाएंगे। वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और दरबार में एक दूसरों के फैसलों की मुखालफत करना शुरू कर देंगे। इस तरह मुल्क में हर तरफ बदनामी और इन बादशाहों के खिलाफ रियाया में गम और गुस्सा फैल जाएगा, यहाँ तक कि 7 बादशाह अपनी आवाम को भी तंग करना शुरू कर देंगे।
फिर तुम इन बादशाहों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देना और मैं इन 7 बादशाहों को आकर हलाक कर दूंगा। तुम इसी वक्त तख्तो ताज पर कब्जा कर लेना, 7 मलकाओं और शहजादों को कैद कर देना। इनके अलावा जो भी तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश करे उससे मैं खुद निपट लूंगा। और वजीर, तुम्हारे सबसे छोटे बादशाह शाहजेब की बेटी जिसका नाम शहजादी सुरैया है, वो मुझे बेहद पसंद है। असल में मैं दोस्तान से उस शहजादी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक आम इंसान के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम उस शहजादी की मुझसे शादी कर दोगे। मैं उस शहजादी को लेकर वापस दोस्तान चला जाऊँगा। फिर तुम इत्मीनान से इस मुल्क पर हुकूमत करते रहना। शहजादी सुरैया के लिए मैं तुम्हें फलों की एक तश्तरी देता हूँ। तुम किसी तरह इस तश्तरी का कोई फल शहजादी को खिला देना। शहजादी सुरैया मुझे देखकर कभी नापसंद नहीं करेगी और खुद ही मुझसे शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। सबज़दो कहता चला गया और फिर इसने वजीर को एक अंगूठी और एक कासनी रंग की निहायत खूबसूरत तश्तरी दी जिसमें 4-5 किस्म के फल मौजूद थे। ये तश्तरी सबज़दो ने हवा में हाथ मारकर हासिल की थी। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर शेरदिल दंग रह गया। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि उसका बाप एक वजीर होते हुए अपने बादशाहों के खिलाफ एक देव के साथ मिलकर ज़ारस्तान का तख्त हासिल करने के लिए इतनी घटिया साजिश करेगा। शेरदिल चूंकि नौजवान था, इसने शहजादों और शहजादी सुरैया के साथ तालीम हासिल की थी और वो उन्हीं के साथ जवान हुआ था, इसलिए वो उन्हें बेहद पसंद करता था। और फिर 7 बादशाह भी बेहद नेक और रहमदिल थे जिनसे सारी राया मोहब्बत करती थी। इसलिए शेरदिल परेशान हो रहा था कि इसका बाप इन सब को मारकर तख्त पर कब्जा क्यों करना चाहता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया था जब देव ने कहा था वो असल में शहजादी सुरैया को हासिल करने के लिए यहाँ आया है और उसे लेकर अपने साथ वापस दोस्तान चला जाएगा। शहजादी सुरैया नहायत नेक और इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी और शेरदिल उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। फिर वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी शहजादी को कोई बदशक्ल और जालिम देव उठाकर ले जाए। उसने ये सोचते हुए गुस्से से अपने म्यान से तलवार निकाल ली कि वो अभी इस खौफनाक देव का खात्मा कर दे। मगर वो सोच में इस कदर गुम था कि जब वो सोच से निकला तो सबज़दो वहाँ से गायब हो चुका था। उसका बाप खुशी खुशी वापस आ रहा था। शेरदिल अचानक झाड़ियों से तलवार सोच कर उसके सामने आया तो वजीर बुरी तरह से उछल पड़ा। तुम शहजादा शेरदिल, तुम यहाँ? उसने अपने बेटे को देखकर हैरत भरे लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। हाँ अब्बा जान, मैंने आपकी और उस शैतान देव की सारी बातें सुन ली हैं। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसा शरीफ इंसान एक खूनी देव के साथ मिलकर अपने नेक दिल बादशाहों के खिलाफ ऐसी गंदी और घिनौनी साजिश भी कर सकता है। कहाँ है वो देव? मैं उसको अभी और इसी वक्त हलाक कर दूंगा और आपको अभी 7 बादशाहों के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताऊंगा अब्बा जान, और आपको इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। और ये जानकर कि इसके बेटे ने उसकी और देव की सारी बातें सुन ली हैं, वजीर का रंग जरद पड़ गया। ओ बेटा, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं इस मुल्क का बादशाह बनूंगा, फिर कुछ अरसे बाद मैं तुम्हें तख्तो ताज सौंप दूंगा और फिर हम ऐश करेंगे। मुझे आपके ऐश और आराम की कोई ज़रूरत नहीं अब्बा जान। आप इन नेक दिल बादशाहों को मारना चाहते हो और उस मासूम शहजादी को जो आपको नहायत इज्जत से बुलाती है उसे आप एक जालिम और बदशक्ल देव के हवाले कर देंगे। और आपने इस देव से वादा किया है कि आप उसे हर रोज़ 10 लड़कियों को हलाक करके उनका खून पिलाएंगे। आप इस कदर जालिम, संगदिल और बेरहम कब से हो गए अब्बा जान? मैं कुछ नहीं जानता शहजादा शेरदिल। मैं शाह-तौल देव से वादा कर चुका हूँ। अब अगर मैंने उसका वादा तोड़ा तो वो मुझे एक लम्हे में हलाक कर देगा। अब्बा हजूर, आप परेशान ना हो, उस देव को मैं हलाक कर दूंगा। आप बस उसकी दी हुई अंगूठी और फलों की तश्तरी फेंक दें और बादशाहों को मारकर खुद बादशाह बनने का ख्याल दिल से निकाल दें। वजीर उसकी जानिब कहरबाज निगाहों से देखने लगा। फिर वो कुछ सोचकर इस अंदाज में शेरदिल की तरफ बढ़ने लगा जैसे उससे कुछ कहना चाहता हो। शेरदिल के करीब आकर इसने
سبز دیو کی دی ہوئی سرخ نگینے والی انگوٹھی ایک دم اس کی طرف کر دی۔ جادو کی انگوٹھی، میرے بیٹے کو بے ہوش کر دو اور اسے غائب کر کے میرے گھر پہنچا دو۔ یہ خواہ خواہ میرے ارادوں میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر نے کہا، اور دوسرے لمحے شیر دل کو ایک زور کا چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور دوسرے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وزیر بہت خوش ہوا۔ تم تو واقعی بڑی کام کی انگوٹھی ہو، تم سے تو میں بڑے بڑے کام لے سکتا ہوں۔ جس طرح تم نے میرے بیٹے کو بے ہوش کر کے میرے گھر پہنچایا، کیا اسی طرح مجھے بھی غائب کر کے میرے گھر پہنچا سکتی ہو؟ اسی وقت ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور پھر حیران رہ گیا۔ اس جھٹکے نے اسے ایک لمحے میں دریا کے کنارے سے اس کے اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وزیر مارے خوشی کے ناچ اٹھا۔ جادوئی انگوٹھی کی شکل میں وزیر کے پاس ایک بہت بڑی طاقت آ گئی تھی جس سے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وزیر زولاس جادو کی انگوٹھی پا کر جیسے دیوانہ ہو گیا۔ وہ شاتال دیو کی دی ہوئی ہدایت بھی بھول گیا اور اس نے انگوٹھی حاصل کرنے کے دوسرے ہی دن 7 بادشاہوں سے مل کر ان کے سامنے سرخ نگینے والی انگوٹھی کر دی، جس سے بادشاہوں کے دماغ پلٹ گئے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ان بادشاہوں نے ایک دوسرے کے کیے ہوئے فیصلوں کی بھی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3 ہی دنوں میں اپنی رعایا کو بے حد ستانا شروع کر دیا اور ان پر بے جا ٹیکس لاگو کر دیے۔ پہلے ان بادشاہوں کے دربار میں کوئی درباری آتا تو اس کی نہ صرف عزت کی جاتی بلکہ بادشاہ اس کی فریاد سن کر اس کی دل و جان سے مدد کرتے تھے، مگر اب انہوں نے اول تو فریادیں سننا بند کر دیں، بلکہ بھولے بھٹکے سے کوئی فریادی ان کے پاس آ جاتا تو اس کی سخت بےزتی کی جاتی، سپاہیوں سے کہہ کر انہیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا جاتا۔ بادشاہوں کے بدلے ہوئے رویے کے سبب تمام لوگ حیران تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان بادشاہوں کو کیا ہو گیا، وہ رحم دلی چھوڑ کر اس قدر سخت دل اور ظالم کیوں بن گئے۔ وزیر نے محل میں شاتال دیو کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو ان بادشاہوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور پھر اس نے نہایت چالاکی سے کام لیتے ہوئے سپہ سالار اور بہت سے سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان بادشاہوں کو گرفتار کر لیا۔ انہیں 7 ملکاؤں اور شہزادوں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا اور خود تخت و تاج سنبھال کر بیٹھ گیا۔ وزیر کے اچانک تخت سنبھالنے پر رعایا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے وزیر کے خلاف مظاہرے شروع کیے تو وزیر نے ان پر فوج کی چڑھائی کر دی اور جو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا اس کے حکم سے اسے قتل کر دیا جاتا، جس سے رعایا خوفزدہ ہو گئی اور پھر انہوں نے وزیر کے خلاف اپنی آواز اٹھانے سے توبہ کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ وزیر نے بادشاہ بنتے ہی ہر طرف اپنے آدمی تعینات کر دیے۔ عوام میں ہر طرف بدامنی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جو لوگ 7 بادشاہوں کی سلطنت میں خوشحالی اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے، وزیر زولاس نے ان سب کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور رعایا پر طرح طرح کے مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ اس کا بیٹا شیر دل ابھی تک جادو کی انگوٹھی کے زیر اثر بے ہوش تھا۔ وزیر اسے شاہی محل میں لے آیا اور اسے محل کے کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے علاوہ وزیر نے شہزادی سریا کو بھی ایک کمرے تک محدود کر دیا۔ ایک روز زولاس وزیر اپنے کمرہ خاص میں بیٹھا تھا کہ اس وقت اس کے سامنے روشنی چمکی اور اچانک وہاں شاتال دیو نمودار ہو گیا، جو بڑے غصے میں تھا۔ شاتال دیو کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر زولاس بری طرح سے اچھل پڑا۔ شاتال دیو، تم بڑے اچھے موقع پر آئے ہو۔ دیکھو، میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ میں نے تمہاری جادو کی انگوٹھی کی مدد سے 7 بادشاہوں کے دماغ بدل ڈالے۔ پھر میں نے سپہ سالار کو اس انگوٹھی کی مدد سے اپنے ساتھ ملایا اور اس کے ساتھ سینکڑوں سپاہیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر میں نے ان کی مدد سے 7 بادشاہوں، ان کی ملکاؤں اور شہزادوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا اور پھر میں نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے، ورنہ میں تو شاید سوچ سوچ کر ہی مر جاتا کہ میں بھی کبھی اس ملک کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا زولاس، وہ کام جو میں نے کرنا تھا تم نے خود ہی کر دیا۔ اب آخری کام بھی تم ہی انجام دے دو۔ ان 7 بادشاہوں، ان کی ملکاؤں اور ان کے بیٹوں کا خاتمہ کر دو
ताकि इस मुल्क पर तुम्हारी बादशाहत कायम हो जाए। शाताल देव ने कहा तो जुलास और भी ज़्यादा खुश हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाताल देव, तुम वाकई बहुत अच्छे देव हो। मैं अभी जाकर इन बादशाहों का खात्मा करता हूँ। और हाँ, क्यों ना मैं सातों बादशाहों, इनकी मलकाओं और उनके बेटों को तुम्हें खून पिलाऊं। खून पिलाने का मैंने तुमसे वादा भी तो कर रखा है। जुलास ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मगर ठहरो, शहजादी सुरैया कहाँ है? मैं पहले उससे मिलना चाहता हूँ। तुमने उसे मेरा जादुई फल खिलाया कि नहीं? मैंने शहजादी सुरैया को एक कमरे में बंद कर दिया है और फल उसके कमरे में रखवा दिए थे। 2-3 रोज से वो वहीं है। मैंने उसे और कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तक वो यकीनन तुम्हारे जादुई फल खा चुकी होगी। देव बोला, चलो आओ मुझे दिखाओ। और जुलास देव को लेकर कमरे से बाहर आ गया। शहजादी सुरैया नहायत उदास और परेशान अंदाज में इधर उधर टहल रही थी। उसे पिछले 3 रोज से वजीर ने इस कमरे में कैद कर रखा था। शहजादी को बादशाहों और अपने खानदान की कैद की खबर थी और उसे ये भी मालूम था कि इस वक्त मुल्क की बागडोर वजीर जुलास के कब्जे में है। वो 3 रोज से मसलसल रोती रही। इसने कुछ खाया ना कुछ पिया। हालांकि सामने एक मेज पर फलों से भरी हुई तश्तरी पड़ी थी, मगर अभी तक शहजादी ने इन फलों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा और ना उन्हें पसंद किया। मगर 3 रोज की भूख प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो गया और वो बार बार तश्तरी और फलों की जानिब देख रही थी। और फिर इससे रहा ना गया। इसने आगे बढ़कर जल्दी से तश्तरी में से सुर्ख रंग का एक रस भरा फल उठाकर हाथ में ले लिया और खाने ही लगी थी कि उसे ख्याल आया कि ना मालूम इसके भाइयों, बादशाहों और मलकाओं को भी कैद में कुछ खाने को मिला या नहीं। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सुर्ख फल को खाए बगैर उसे दोनों हाथों में लिए उदासी से इधर उधर टहलने लगी। उसी लम्हे खिड़की में सब्ज शताल दो नमूदार हुआ। वो आंखें फाड़ फाड़ कर शहजादी सुरैया को देखने लगा। ठीक उसी लम्हे दरवाजे पर पड़े हुए बड़े से सुर्ख पर्दे को हटाकर वजीर जुलास भी झांक कर कमरे में मौजूद शहजादी सुरैया को देखने लगा। शहजादी आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उसका रुख दूसरी तरफ था, इसलिए शहजादी ने देव और वजीर को अभी तक नहीं देखा था। अचानक देव को न जाने क्या ख्याल आया। इसने खिड़की से अपना हाथ निकाला। दूसरे ही लम्हे इसका हाथ फैलता हुआ शहजादी सुरैया की जानिब बढ़ता चला गया, मगर फिर कुछ सोचकर इसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इसने सर घुमाकर जुलास की तरफ देखा और उसे वापस चलने का इशारा किया। जुलास ने पर्दा छोड़ दिया और शाताल देव भी खिड़की में से गायब हो गया। शहजादी बदस्तूर उदासी के आलम में खड़ी गहरी सोच में खोई हुई थी। फिर इसने हाथ में पकड़े हुए फल को गुस्से से एक तरफ फेंक दिया और एक जगह बैठकर अपने माँ बाप और भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी वक्त सुर्ख पर्दा हटा और वजीर ज़्यादा शेर दिल हाथ में तलवार लिए गुस्सीले अंदाज में अंदर आ गया। इसने चारों तरफ कमरे में देखा, फिर रोती हुई शहजादी को देखकर वो तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। कदमों की आवाज़ सुनकर शहजादी सुरैया ने चौंक कर सर उठाकर देखा और वजीर ज़्यादा शेर दिल पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में बेपनाह नफरत फैल गई। तुम यहाँ क्या लेने आए हो शेर दिल? तुम्हारे बाप ने मेरे माँ बाप और भाइयों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया है और खुद इस मुल्क का बादशाह बन बैठा है। अब क्या अपने बाप के हुक्म से मुझे मारने के लिए आए हो? तुम तो सारी उम्र हमारे साथ खेले हो, तुम बहुत अच्छे थे, फिर तुम लोगों को अचानक ये क्या हो गया? क्यों किया तुमने ये सब? आप गलत समझ रही हैं शहजादी साहिबा। मेरे बाप ने वाकई इस मुल्क के साथ गद्दारी की है और एक देव के साथ मिलकर इस मुल्क का सुकून तहस नहस कर दिया है, मगर खुदा जानता है कि मैं अपने बाप की साजिश में शरीक नहीं। उन्होंने तो मुझे भी बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं होश में आया और फिर खुद को बंद कमरे में देखकर मैं समझ गया मैं बड़ी मुश्किलों से इस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले आपके कमरे में आपकी खैरियत मालूम करने आया हूँ। और ये फल शहजादी साहिबा, इन फलों को आप हरगिज़ मत खाइए, ये जादू के फल हैं। शेर दिल तेज तेज कहता चला गया और फिर इसने जल्दी से शहजादी सुरैया को सारी बात बता दी।
जिसे सुनकर शहजादी सुरैया की आंखें हैरत के मारे फैलती चली गईं और वो बोली, फिर तो तुम्हारे बाप ने मेरे सारे खानदान को हलाक कर दिया होगा। ये सब क्या हो गया शेरदिल? तुम्हारा बाप इस कदर संगदिल और बेरहम हो सकता है? मैं तो हमेशा इन्हें अपना बुजुर्ग समझती थी। तख्तो ताज हासिल करने के लिए इन्होंने ये क्या कर दिया? ये कहकर शहजादी सुरैया रोने लगी। मैं इस बात पर परेशान हूँ शहजादी साहिबा। बहरहाल आप यहीं रहिए, मैं शाहताल देव और अपने बाप के पास जा रहा हूँ। मेरा बाप एक गद्दार इंसान है और गद्दार इंसान मुल्क व कौम का सबसे बड़ा मुजरिम होता है और इस मुजरिम की सज़ा सिर्फ मौत ही हो सकती है। वजीर एक गद्दार है और गद्दार इंसान कभी मेरा बाप नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो शहजादी को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गया और मुख्तलिफ कमरों में देखने लगा। बादशाह के कमरे खास में दाखिल होते ही उसे अपने बाप और उसके करीब शाहताल देव खड़ा दिखाई दिया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, शाहताल देव और जुलास बुरी तरह से चौंक पड़े। शहजादे तुम कमरे से बाहर कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें जादुई अंगूठी से बेहोश कर रखा था। वजीर ने अपने बेटे से पूछा। कौन है ये? खबरदार आगे मत आना वरना जलाकर राख कर दूंगा। शाहताल देव ने पहले जुलास से पूछा, फिर शेरदिल को आगे बढ़ता देखकर इसने गरज कर कहा, नहीं शाहताल देव, ये मेरा बेटा है, इसे कुछ मत कहना। बेटा ये तलवार फेंक दो, देखो मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूँ और मैं तुम्हें प्यार से शहजादा कहता था ना, अब तुम सचमुच के शहजादे बन गए हो। मैं जानता हूँ अब्बा जान, इसीलिए मैं ये तलवार लेकर आया हूँ ताकि इसे आपके कदमों में डालकर मैं भी आपको बादशाह मानकर आपकी रियाया में शामिल हो जाऊं। और ये सुनकर जुलास के लहजे पर सुकून आ गया। वो अपने बेटे के लहजे में छुपे हुए तंज को समझ ना पाया। शेरदिल तलवार लिए हुए आगे बढ़ा और इसने तलवार वाला हाथ इस अंदाज में आगे बढ़ाया जैसे वो वाकई तलवार इसके कदमों में डाल रहा हो, मगर फिर अचानक वो अपनी जगह पर से तेजी से घूम गया। दूसरे ही लम्हे इसकी तलवार सबज देव की गर्दन पर पड़ी और शाहताल देव की गर्दन एक झटके से कटकर दूर जा गिरी। ये सब कुछ अचानक और इस कदर तेजी से हुआ कि वजीर जुलास और शाहताल देव को सोचने समझने का मौका ही ना मिला और सबज देव धोखे में उसके हाथों मारा गया। ये तुमने क्या किया बेटा? शेरदिल को शाहताल जादूगर की गर्दन उड़ाते देखकर जुलास बुरी तरह से उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से शेरदिल और कभी जमीन पर तड़पते सरकटे देव की जानिब देखने लगा। उसी लम्हे शेरदिल उछलकर उसके करीब आया। इसने जुलास के पीछे जाकर जल्दी से तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गद्दार जुलास, अपने हाथ से जादुई अंगूठी उतारकर मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। वजीर ज़ादा शेरदिल खौफनाक अंदाज में घुराया और जुलास ने जल्दी से शाहताल की दी हुई अंगूठी उतारकर उसके हवाले कर दी। अंगूठी हासिल करते ही इसने अपने गद्दार बाप को भी ना बख्शा और उसकी गर्दन काटकर उसे वहीं फेंक दिया। शाहताल देव की अंगूठी जमीन पर रखकर उसे जादू की तलवार के दस्ते से मार मार कर चूर चूर कर दिया और फिर इसने बाहर जाकर खुद ही अपने बाप की हलाकत का ऐलान कर दिया। वजीर की हलाकत और एक सबज देव के मरने की खबर आन की आन में पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। वजीर ज़ादा शेरदिल ने सातों बादशाहों, मलकाओं और शहजादों को कैसे आज़ाद कर दिया और ख़ुद को उनके हवाले कर दिया कि वो एक गद्दार बाप का बेटा था। अगर बादशाह उसे जुर्म में चाहे तो उसे भी सजाए मौत दे सकते हैं, मगर बादशाह उसकी वजह से तो आज़ाद हुए थे। और शहजादी सुरैया ने जब उनको सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने बारी बारी शेरदिल को अपने गले लगाना शुरू कर दिया और उसका बेहद शुक्रिया अदा किया। एक अरसा तक 7 बादशाह हुकूमत करते रहे और मुल्क में एक बार फिर खुशहाली आ गई। फिर 7 बादशाहों ने तख्तो ताज अपने बेटों के हवाले कर दिया और वजीर ज़ादा शेरदिल की शादी शहजादी सुरैया से करके उसे अपना 7वां बादशाह मुंतखब कर लिया। और एक बार फिर मुल्क ज़ारस्तान पर 7 बादशाहों की हुकूमत कायम हो गई, जिसकी वजह से मुल्क ज़ारस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए उसी महल में रख लिया गया क्योंकि उसकी बेटी का कुछ पता ना चल सका।
شاید شاطال دیو نے اسے مار کر اس کا خون پی لیا ہو۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔